In the previous video, we saw how PYQs played a significant role in securing 46 marks in prelims 2023. They will again be one of our sharpest weapons that will help us in clearing the prelims 2024. Hello everyone and welcome to Easy UPSC. तो आज के वीडियो में we will analyze the PYQs of 2023 prelims and the subject will be economy and IR. इस वीडियो को देखने के बाद you will also learn how to analyze the PYQs properly. और एक बात जो मैं फिर से मेंशन करना चाहूँगा इज़ दैट प्लीज़ डोंट फॉलो सिनॉप्सिस ब्लाइंडली, अदरवाइज़ आप खुद से कभी सीख ही नहीं पाओगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट द PDFs of this session or any other PDF, then kindly comment in the comment section and I will post it on the Telegram channel. Okay, so this is the index जहाँ एक तरफ मैंने जो टॉपिक्स पूछे गए थे 2023 में उनके बारे में मेंशन किया है और दूसरी तरफ वो टॉपिक्स और वो थीम्स है जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड है. ओके, so now let's look at the first question. So this is the first question. It asked about the United Nations World Water Development Report. And before we go deep, let's look at something. So this is my notes from the previous year questions. Okay, this note I made from the previous year questions जो मैंने पिछले साल बनाया था. And in 2017 I think these topics came up directly or indirectly, so I made a note on them. Okay, UN water and World Water Development Report. Okay, but मैंने उतना डीप एनालिसिस नहीं किया था, so I didn't think that it was necessary to go very deep, and unfortunately UPSC asked questions that were from the report. Okay, they went in deep into the report of the World Water Development Report and they asked questions from there. Okay, so from this question we will learn about the UN water and also the World Water Development Report and the various facts that were mentioned in the report. तो पहले तो UN वाटर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है जो आप खुद ही पढ़ सकते हैं, तो मुझे ये समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड रिगार्डिंग द वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, you can see that it is a flagship report on water and sanitation by UN Water. Okay, and this report is published by UNESCO on behalf of UN Water and its production is coordinated by UNESCO World Water Assessment Program. In the next video, okay, when there will be another video about economy and IR, there we will learn about the UNESCO World Water Assessment Program also, because इस वीडियो में इस लेसन में मैंने वो नहीं दिया है, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इकोनॉमी एंड आयर के बारे में उसमें मैंने ये दे दिया है. सो इफ़ वी लुक एट द फैक्ट्स नाउ, देन द हाईएस्ट शेयर इन ग्लोबल ग्राउंड वाटर विड्रॉल बिलोंग्स टू 8 countries. These 8 countries and together they extract 75% of the world's total groundwater extraction. Also you will learn that countries with the largest area under irrigation, it is China first, 73 million hectares, and then India, then USA, then Pakistan. In the third fact, we will learn that India is the largest groundwater user globally, 251 km³ per year, and it is 26% of the total global rate. Okay, now India uses 89% of the groundwater abstraction for irrigation, and China is relatively less reliant on groundwater for irrigation. So these are the facts, you can read about them. Okay, here I have mentioned about the global facts also, that this is the facts that I mentioned just a while ago, that India's estimated groundwater extraction is 251 km³, 89% is for irrigation, 9% for domestic use and 2% for industrial use. So this is the global rate. Okay, you will have to remember this also. Now let's learn about the zero liquid discharge, because this was also mentioned in the report. So what is the zero liquid discharge? So zero liquid discharge aims to treat the effluent to recover it as clean water and reuse it in the industrial process. So it is basically a process of turning the
water from polluted to a clean one. Okay, it is a form of process water cycling to control water pollution. Okay, so this is zero liquid discharge. Now let's look at the next question. It asked about these various markets, these various instruments. Okay, so this is the chart that I took from Nalsa's note. Here you will learn that it talked about financial market, and within it there are two classifications, एक है मनी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट. सो द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट कैपिटल मार्केट. तो कैपिटल मार्केट क्या है? सो अगर हम देखेंगे कि वेरियस जो बॉन्ड्स है जो जिसको बाई या सेल किया जा सकता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर सोवरेन बॉन्ड या फिर कोई फार्म का बॉन्ड हो या डिबेंचर हो, तो अगर उसकी ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा हो, ओके, वी कैन कीप इट फॉर मोर देन 1 ईयर, सो देन दैट बिलोंग्स टू कैपिटल मार्केट. एंड अगर उसकी ड्यूरेशन 1 साल से कम है, लाइक ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल और वेज एंड मीन्स एडवांसेस फॉर दिस इज फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर फार्म्स, they are known as commercial paper, promissory notes. Okay, and for financial intermediaries it's call money, notice money or the repo. So these are the money market instruments. Okay, and one thing that we also need to remember is that state government's treasury bill stopped since 2011. अब सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट में से ही ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है. ओके, यू नीड टू रिमेंबर इट. एंड ये सब शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है. तो कंपनी जो बोरो करती है और जो इंस्ट्रूमेंट वो इशू करती है उनको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर हुंडी या फिर प्रॉमिसरी नोट्स. ओके, अलोंग विथ these instruments you will have to remember these also. ओके, एंड हुंडी के बारे में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है ऑलरेडी, तो उसमें भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे. एंड फॉर मर्चेंट इट इज़ कमर्शियल बिल. And what is call money? Call money is the interest rate when financial intermediaries borrow for one day among themselves, such as if we look at it, तो अगर दो बैंक अपने बीच में ट्रांजैक्शन कर रही है, कोई एक बैंक एक दूसरे बैंक से बोरो कर रही है और वो सिर्फ एक दिन के लिए है, तो उसे हम कहेंगे कॉल मनी. और नोटिस मनी क्या है? अगर सेम तरीके से अगर दो बैंक आपस में इंटरेक्ट कर रही है, ट्रांजैक्शंस कर रही है और वो 2 से 14 दिनों के लिए है, तो इट विल बी नोन एज नोटिस मनी. ओके, एंड नॉट ओनली बैंक्स, वेरियस फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज सच एज द NBFCs ऑल्सो. ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस आस्क्ड अबाउट स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट. सो यू कैन लर्न अबाउट इट फ्रॉम हेयर. आई हैव मेंशन्ड इट हेयर. इट वाज क्रिएटेड टू एंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विद इन द यूरोपियन यूनियन by ensuring that member countries do not overspend. In order to achieve this, the pact has enforceable rules such as limit on budget deficits and debt to GDP ratios. So यूरोपियन यूनियन ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिससे उसका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उन कंट्रीज़ का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बरकरार रहे, सच एज लिमिट्स ऑन बजट डेफिसिट्स. तो अगर बजट डेफिसिट एक हद से ज़्यादा ना चला जाए, इसीलिए कुछ लिमिट्स है. और डेट टू GDP रेशियोज़ में भी कुछ लिमिट्स है. व्हाट आर डेट टू GDP रेशियोज़? तो अपने GDP में से जैसे इंडिया का है अभी आई थिंक 40 और 41%, जो आपका GDP में इतना उधार है, आपने एक्सटर्नल या इंटरनल लोन्स लिए हैं. ओके, वो प्राइवेट भी हो सकते हैं या फिर सोवरेन भी हो सकते हैं. सो दीज आर डेट टू GDP रेशियोज़. ओके, सो दिस इज़ द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट. You can read about it. And interconnected, linked with this question, we will study about the carbon border adjustment mechanism. So what is the carbon border adjustment mechanism? It is a carbon tariff on carbon intensive products such as steel, cement and some electricity imported to the European Union. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कार्बन इंटेंसिव है, जिनमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन के कुछ और फॉर्म्स जिससे एमिट होते हैं, तो उन इंडस्ट्रीज़ को एक टैरिफ लगाया गया जो कि यूरोप में इंपोर्ट होते हैं उनके प्रोडक्ट्स. ओके, उनके प्रोडक्ट्स पे एक तरह का कार्बन टैरिफ जो है लगाया गया. सो दिस इज़ कॉल्ड द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. सो यू कैन रीड अबाउट इट फ्रॉम हियर एंड ऑल्सो अबाउट यूरोपियन यूनियन. सो ये तो आप खुद ही कर सकते हैं, विल नॉट वेस्ट टाइम.
Now in this question, okay, regarding the monetary policy. So how does monetary policy help? It helps in price stability, it helps in economic growth, in job creation, in social justice. Okay, तो मॉनिटरी पॉलिसी सबसे पहले मेंशन किया गया था मिल्टन फ्राइडमैन के द्वारा. ओके, एक्चुअली मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में हमको सब कुछ ही पढ़ना होता है क्योंकि ये पिछले बहुत सालों में आया है मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में. सो प्लीज़ गो एंड रीड फ्रॉम योर बेसिक नोट्स और मोनल सर्स नोट्स बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस एनी सिंगल टर्म फ्रॉम द मॉनिटरी पॉलिसी. ओके, और वो पूरा का पूरा नोट तो मैं यहाँ नहीं दे सकता. So that's why I have given these things that are important, but you need to read the whole handout. So regarding the Monetary Policy Committee, it is a statutory committee which consists of members from RBI also, 3 members from RBI and 3 members from government side, and वो हर 2 मंथ में मिलते हैं. तो किस लिए मिलते हैं? मॉनिटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग डिफरेंट डिसीशंस लेने होते हैं, जैसे कि आपको रेपो रेट इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, CRR इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है. सो व्हाई दिस डिसीशंस आर टेकन टू कंट्रोल द CPI इन्फ्लेशन रेट. ओके, सो मॉनिटरी पॉलिसी हैज़ अ टारगेट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बिटवीन 2 to 6%. ओके, this is a tool that I took ready reckoner table from Monal Sir's notes, where it is mentioned that what is easy or cheap or dovish or expansionary policy and what is tight or dear or hawkish or contractionary monetary policy. So what is the easy monetary policy? जब आप अपने जो रेट्स होते हैं CRR SLR ये सब आप डिक्रीज़ करते हैं, सो देन इट इज़ कॉल्ड एज इजी मॉनिटरी पॉलिसी, इजी पॉलिसी और चीप और डॉविश और एक्सपेंशनरी पॉलिसी. ओके, सो सपोज डिफ्लेशन चल रहा है और इन्फ्लेशन चल रहा है. ओके, अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो अगर आप मार्केट में से पैसा उठा लेंगे, ओके, मार्केट में ज़्यादा पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा? तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा और वो खरीदारी करना बंद कर देंगे, तो जिससे कि प्रोडक्ट्स के वैल्यू कम होंगे, उनके प्राइसेस कम होंगे. ओके, सो दिस हेल्प्स इन फाइटिंग द इन्फ्लेशन. सो अगर आप तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको जो रेट्स होते हैं CRR SLR उनको इंक्रीज़ करना होगा. ओके, सो अगर आप उनको इंक्रीज़ करेंगे सो इट विल बी नोन एज टाइट मॉनिटरी पॉलिसी और डियर और हॉकिश और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी. ओके, सो प्लीज़ गो थ्रू दिस टेबल. Here it is mentioned about quantitative tools and qualitative tools, also known as direct or selective tools, and the quantitative tools are also known as general or indirect tools. Now in the next question it asks about sterilization. Which one of the following activities of the RBI is considered to be a part of sterilization? So first let's look at what is sterilization. Suppose RBI ने मार्केट से डॉलर ख़रीदा है. ओके, सो अगर डॉलर ख़रीदेंगे तो उसके बदले में सपोज़ रूपी करेंसी का यूज़ किया तो मार्केट में रूपी का अमाउंट ज़्यादा हो गया एंड डॉलर का अमाउंट कम हो गया. ओके, तो इससे क्या होगा? करेंसी रेट में वोलाटिलिटी आ जाएगा. ओके, जैसे कि अगर $1 70 रुपीज़ है और अगर मार्केट में डॉलर का क्वांटिटी कम हो गया और रुपये का ज़्यादा हो गया तो $1 80 या 90 रुपीज़ में भी जा सकता है. सो टू काउंटर दिस व्हाट विल RBI डू? RBI जो है अपना गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी है वो सेल करेगा. अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा तो बदले में उसको मार्केट से रुपीज़ मिलेंगे, तो जिससे कि मार्केट में रुपीज़ का क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगा. ओके, सो फिर से वो बैलेंस आ जाएगा. जो पहले उन्होंने डॉलर को बाई किया था और रुपीज़ को सेल किया था, मतलब रुपीज़ के साथ डॉलर को बाई किया था, तो तब रुपीज़ का क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गया था और अभी रुपीज़ का क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रहा है. सो ये एक तरह से बैलेंस हो जाएगा. ओके, सो स्टेरिलाइजेशन, दिस इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन. सो व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? RBI buys and sells union and state government securities to control money supply. This is called the open market operation. Okay, market stabilization scheme is also a type of open market operation. You can read about it. And sterilization or forex swap, operation twist, these are also type of open market operations. Okay, तो अब हम देखेंगे
क्योंकि ये सेकंड ऑप्शन में सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम्स के बारे में मेंशन किया हुआ है. सो वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, how it came into being. Okay, Narasimhan II Committee on Banking Reforms suggested regulatory framework for e-banking and card payments etc. in 1998. So after that, 2007 Payment and Settlement Systems Act came. Now RBI now created a statutory board for the regulation and supervision of payment and settlement systems. Okay, not the RBI but the government. Okay, so we'll also study about the light weighted payment and settlement system, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में भी है. सो यू कैन रीड अबाउट इट फ्रॉम हियर. जो चीज़ें आपके पढ़ने से ही हो जाएगा तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे. ओके, दिस इज अबाउट द यूरोपियन यूनियन एंड द यूएसएस पैक्ट ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल. ना यूरोपियन यूनियन के बारे में इन्होंने पहले भी ऑप्शंस में बहुत बार दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, बट इतना डीप अगर ये लोग जाएंगे तो हमें भी थोड़ा डीप जाना होगा. इन द नेक्स्ट वीडियोस whenever European Union comes up, we will go a little deep and look into various facts. Okay, so you can study about the European Union Trade and Technology Council from here. क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, so we will not discuss this. We will discuss about the balance of payment. Okay, now what is balance of payment? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो डिविजन्स है. एक है करंट अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट. आपने शायद ये सुना भी होगा, लेकिन बहुत बार ये कन्फ्यूजिंग होता है कि करंट अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती है और कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती है, क्योंकि ये टेबल कहीं भी उतने अच्छे से दिया नहीं होता है. सो व्हाट कम्स इन द करंट अकाउंट इज विजिबल्स एंड इनविजिबल्स. तो विजिबल्स कौन सी है? विजिबल्स में आता है गुड्स, जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग, जो कमोडिटीज़ हम लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं वो होते हैं विजिबल्स के अंडर. और जो इनविजिबल्स के अंडर होते हैं वो है सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफ़र्स. ओके, तो इनकम में आता है प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड. ट्रांसफ़र्स में आता है गिफ्ट, डोनेशन एंड रेमिटेंसेस. रेमिटेंसेस का मतलब हमारे वर्कर्स जो फॉरेन में काम करते हैं वो जो पैसा भेजते हैं देश में, उनको रेमिटेंसेस कहा जाता है. ओके, एंड व्हाट बिलोंग्स टू द कैपिटल अकाउंट? बैंक डिपॉजिट्स ऑफ द एनआरआई. तो एनआरआईज हमारे बैंक्स में जो डिपॉजिट्स करते हैं उनके भी बहुत टाइप्स होते हैं जो हम फ्यूचर लेसन्स में करेंगे. एपीआई बिलोंग्स टू इन्वेस्टमेंट कैटेगरी. एंड सोवरेन बॉन्ड, सोवरेन डेब्ट्स और प्राइवेट और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, दिस बिलोंग्स टू द लोन्स और डेब्ट्स. तो सोवरेन वाले डेट्स कौन से होते हैं? जो हम किसी दूसरे गवर्नमेंट से बोरो करते हैं. प्राइवेट और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जो हम किसी प्राइवेट फार्म से बोरो करते हैं. ओके, नाउ फॉर स्मॉल फार्मर्स एंड लार्ज फील्ड, दिस कॉन्सेप्ट you can study about it from here. We will not discuss this as it will waste time. This is a topic related to the small farmers and large field. Actually this is from one of the options. So what is collectivization of agriculture? You can also study about it. Okay, and regarding this third option, this is for contract farming. Okay, now they have asked about MSP. You can study about MSP from the table. This is from Munal's note, and also about Swaminathan committee. So there are 22 crops for MSP, 14 kharif crops, 6 rabi crops and 2 commercial crops. प्लस शुगर केन के लिए MSP नहीं होता है, उसके लिए FRP होता है. ओके, तो MSP के बारे में इन्होंने बहुत बार ही सवाल पूछे हैं और सवाल उतना भी डीप नहीं होता है, बेसिक से सवाल होते हैं. सो यू हैव टू मेमोराइज दिस चार्ट एंड ऑल्सो यू हैव टू रीड अबाउट दिस. ओके, दिस इज रिगार्डिंग द फार्मूला. MSP कैलकुलेट करने के लिए जो होता है, स्वामीनाथन कमेटी ने जो सजेस्ट किया था, दिस is regarding the Niger seeds. So this is about the intangible investment. So what is an intangible investment or intangible asset? It refers to a non-physical asset
जो कि फिज़िकल, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हेयर ब्रांड रिकॉग्निशन, इसका भी कोई फिज़िकल रिकॉग्निशन नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये तो किसी का भी हो सकता है ना, तो इसका कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, ये भी फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। जो इन्वेंट्री होता है जिसमें हम बहुत से चीज़ें स्टोर करते हैं, तो ये तो इसका तो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है। सो दिस इज नॉट इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, सो द ऑप्शन आंसर विल बी ओनली 3। ओके, प्लीज रीड अबाउट दिस इन दिस चार्ट। एंड इससे मिलता जुलता एक हम आर्ट एंड कल्चर का जो है चार्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस ऑफ इंडिया। सो देयर आर 15 intangible cultural heritage in India. This 15th Garba of Gujarat was the latest entrant. So please read about this, all of this, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट में काफ़ी बार इनसे सवाल मिलेंगे। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द MSME। इन्होंने MSME के बारे में सवाल पूछा था। तो MSME में कितने इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और उनका कितना टर्नओवर होता है। तो पहले तो ये 2006 में MSME डेवलपमेंट एक्ट के अंदर ये था इनका क्लासिफिकेशन, और अब 2020 में इनका क्लासिफिकेशन ये है। तो माइक्रो जो कैटेगरी है, माइक्रो कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से कम। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनमें टर्नओवर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से कम। जो मीडियम जो कैटेगरी होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम और टर्नओवर 250 करोड़ से कम। ओके, एंड दिस इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। और उनके अंदर कितने कंपनीज आते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज, अटैच्ड ऑफिसेस और स्टैट्यूटरी बॉडीज़। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, ये आपको कई बार मॉक टेस्ट में मिलते हैं यही सवाल, दैट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन बिलोंग्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ MSME और नॉट। सो यू कैन सी दैट इट इज़ अ statutory body under the Ministry of MSME. Okay, the question also talked about priority sector lending. So what is priority sector lending? बैंक्स को जो है उनको RBI ने कुछ डायरेक्शंस दी है कि आप जो इतने लोन्स देते हैं पब्लिक को, इनमें से एक स्पेसिफिक पोर्शन एक स्पेसिफिक कैटेगरी को ही जाना चाहिए। ओके, लाइक वीकर सेक्शंस में क्या कौन कौन आते हैं, SC ST वुमेन, फिजिकली हैंडीकैप्ड माइनॉरिटीज़, मैनुअल स्कैवेंजर्स, आर्टिशंस एक्सेट्रा। तो इनको 12% जो आप जो टोटल लोन देते हैं उनके 12% आपको इनको ही देना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली एग्रीकल्चर सेक्टर 8%, और एग्रीकल्चर में मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को 10%, माइक्रो एंटरप्राइजेस, खादी विलेज इंडस्ट्रीज 7.5% एंड अदर कैटेगरीज 2.5%. Okay, and please remember that this PSL means only minimum, क्योंकि वीकर सेक्शंस को आपको मिनिमम इतने % देने हैं। तो अगर आप उनको 12% की जगह 15%, 20% भी देते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। ओके, एंड दिस प्रायोरिटी सेक्टर बिलोंग्स ओनली टू, इट अप्लाइज ओनली टू बैंक्स, इट डोंट अप्लाई टू NBFCs, क्योंकि NBFCs भी लोन देते हैं बट ये उन पे अप्लाई नहीं होते। ओके, लेकिन अगर आप देखेंगे कि कोई बैंक किसी NBFC को लोन देता है और वो NBFC किसी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर जो कैटेगरीज है उनको लोन्स देते हैं, तो फिर ये बैंक के PSL कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, एंड ऑल्सो अगर कोई बैंक अपना PSL का जो टारगेट है, जैसे 12% था, 12% की जगह अगर 10% दे दिया और 2% रह गया, तो जो भी आपका शॉर्टफॉल मनी रहेगा, जितना आपने लोन नहीं दिया है उस कैटेगरी को, वो 2 फंड्स में जाएंगे, सरकार के 2 फंड्स में जमा होंगे। कौन कौन से? एक है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि आता है NABARD के अंदर और ये क्रिएट किया गया था 1996 में, और एक आता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि आता है नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर। ओके, ये क्रिएट किया गया था 2023 में। ओके, so these are the things, please study about them. Okay, जैसे फॉरेन बैंक्स विद 20 और मोर ब्रांचेस, उन पे भी PSL लागू होता है। एंड हियर आई हैव मेंशन अबाउट NBFCs एंड हाउ दे वर क्रिएटेड, व्हाट आर द रेगुलेशंस। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि CRR SLR जो है वो NBFC पे, हर NBFC पे अप्लाई नहीं होता है। CRR इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ NBFCs एंड SLR इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन NBFC डिपॉजिट टेकिंग।
जो भी NBFCs डिपॉजिट लेते हैं उन पे अप्लाई होते हैं. सो प्लीज़ गो थ्रू द चार्ट. Now if we look at InvITs, okay, they asked about InvITs, that is Infrastructure Investment Trusts. तो आपने देखा होगा कि मोनाल सर के नोट अगर आपने पढ़ा है तो उनमें रेट्स और इन्वेट्स दोनों के बारे में दिया हुआ है. सो दीज आर द ट्रस्ट्स और फंड्स दैट आर फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस, जिनका बहुत इनकम है, उनके बारे में उनके लिए है ये. क्योंकि इसमें मिनिमम रेट्स में 50,000 इन्वेस्टमेंट और इन्वेट्स में मिनिमम 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना होता है. ओके, तो व्हाट इज़ इन्वेट्स? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड और ट्रस्ट. तो इसमें जो भी फंड्स जमा होंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ होंगे, जैसे कि एयरपोर्ट बनाने में, हाईवे, थर्मल प्लांट्स एट्सेट्रा. और रेट्स का जो है दैट इज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में जाएगा. ओके, सो बेसिकली देयर आर 5 टाइप ऑफ इन्वाइट्स. अब इन्होंने इतना डीप पूछ लिया है इसके बारे में, तो ये सब चीज़ें भी हमें करनी होगी. ओके, 5 टाइप ऑफ इन्वाइट्स: एनर्जी, कम्युनिकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स एंड सोशल एंड कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इन 5 तरह के इन्वाइट्स में आप जो है फंडिंग दे सकते हैं. आप एक आप इन्वाइट कंपनी में देंगे. ओके, सो लेट्स सी दिस कि एक इन्वाइट कंपनी वो प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक लिस्टेड भी हो सकता है. पब्लिक लिस्टेड मीन्स कि ये आपका जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लिस्टेड होगा. ओके, सो देयर आर करेंटली ओनली 2 कंपनीज एंड देयर आर वेरियस पब्लिकली हेल्ड इन्वेट ट्रस्ट्स. ओके, तो अगर आप कोई भी एक इन्वेट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो फिर 5 तरह के जो इन्वेट्स है, ओके, उनमें इन्वेस्ट करेंगे. I hope this is clear to you because these are the 5 types of invites जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. Now these are the rules regarding invite. Also the taxable dividend and interest income, because in the option it was mentioned that invite distributed to their investors exempted from tax, but the dividend is taxable. So सब कुछ ही टैक्सेबल है. ओके, इन्वेट्स के अंदर इनके डिविडेंड, इनके इंटरेस्ट इनकम, सब कुछ. सो प्लीज़ रीड अबाउट दिस. ऑल्सो सरफेसी एक्ट वॉज ऑल्सो मेंशन इन द ऑप्शंस, सो प्लीज़ रीड अबाउट दिस ऑल्सो. हियर आई हैव मेंशन अबाउट रेट्स एंड द क्वालिफिकेशंस फॉर इट. इनको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो प्लीज़ गो थ्रू इट. नाउ दे आस्क्ड अबाउट यूनाइटेड नेशंस Office for Project Services, Sustainable Investment in Infrastructure and Innovation, S3I. So here I have mentioned about S3I and either United Nations Office for Project Services I have mentioned. Please go through them. इसमें भी समझाने वाली कोई बात नहीं है. ओके, here they have mentioned about 15th Finance Commission and how the horizontal tax devolution works. ओके, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था कि प्रीवियस ईयर में 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में एक्चुअली बहुत बार पूछा गया है. सो दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग दैट यू रीड अबाउट द फाइनेंस कमीशन. So finance commission is under article 280. It is a constitutional body. 1 chairman and 4 members. Reappointment is possible and the advices of the finance commission are not binding on the government. Okay, हालांकि गवर्नमेंट ये कभी रिजेक्ट नहीं करता है, बट द एडवाइसेस आर नॉट बाइंडिंग. दिस इज़ द 15th फाइनेंस कमीशन. अभी हाल ही में 16th फाइनेंस कमीशन को भी अपॉइंट किया गया और वो 2025 तक रिपोर्ट करेंगे, अपना पहला रिपोर्ट देंगे. ओके, एंड दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट. तो किनको किनको कितना परसेंट मिलेगा, जो स्टेट्स को पैसे दिए जाते हैं सेंटर की तरफ से, किस हिसाब से मिलेंगे, तो उनका वेटेज है. जैसे कि इनकम डिस्टेंस, स्टेट GSDP डिवाइडेड बाई इट्स पॉपुलेशन, इट्स पर कैपिटल GSDP. तो इस वेटेज के आपको 45% पैसे मिलेंगे. ओके, तो जो टोटल होता है, जो फंड सेंटर स्टेट्स के लिए रखते हैं, तो 45% सिर्फ इस पर्पज़ के लिए रखते हैं. इसके हिसाब से डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट अमाउंट मिलता है. 15% बिलोंग्स अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ द स्टेट, 15% अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन,
12.5% अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जैसे कि अगर किसी स्टेट का लो टोटल फर्टिलिटी रेट हुआ तो वो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे. 10% टू फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, 2.5% टू टैक्स एफर्ट्स एट्सेट्रा. ओके. Now in the next question, let's talk about Jani Suraksha Yojana. This is a central sector scheme, centrally sponsored scheme actually. Please read about it. And connected with it, we will also study about the National Health Mission. Okay, so you can read about it here. Okay. They also asked about Anemia Mukt Bharat strategy. So please read about it from here. 6 interventions. And Janani Shishu Suraksha कार्यक्रम also we will read with it. Okay, उससे लिंक करके हम लोग ये भी पढ़ेंगे that it is a completely free and cashless service to pregnant women including normal deliveries and cesarean operations and sick newborn up to 30 days after birth. Okay. Now CBDC के बारे में आपको शायद पता ही होगा that it is a digital form of fiat currency which is a currency established as money by government regulation or law. तो इनके क्रिप्टो करेंसीज के साथ जैसे कि बिटकॉइन, इनके साथ क्या डिफरेंस होता है? बिटकॉइंस आर नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. ओके, दे आर नॉट इशूड बाय द गवर्नमेंट, बट द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज इशूड बाय द गवर्नमेंट. ओके, इट इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री एंड इज कंसिडर्ड एज लीगल टेंडर. ओके, so these are the points, please read about them. Here they asked about the US dollar or SWIFT system. So what is the SWIFT system? It is a system जिससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं. ओके, ट्रांजैक्शंस इन डॉलर और एनी अदर करेंसी, तो ये स्विफ्ट सिस्टम के अंदर होता है. तो जब आप मोनाल सर के नोट्स पढ़ेंगे उसमें शायद पिलर 1B में ये है बैंकिंग सिस्टम्स में. ओके. नाउ दे ऑल्सो आस्क्ड अबाउट द सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो इसके बारे में दिया हुआ है मैंने, प्लीज़ गो थ्रू इट. And linked with it I have attached different type of financial intermediaries, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो मैंने ये मोनाल सर के नोट से लिया है. जैसे कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स कैन बी बैंक्स और नॉन बैंक्स. बैंक्स दो तरह के होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स. अब कॉमर्शियल बैंक में भी होता है पब्लिक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक्स. और उनसे भी डिफरेंट एक और बैंक्स है, कुछ और बैंक्स है जिनको डिफरेंशियल बैंक्स कहते हैं, जो कि है RRB, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर पेमेंट बैंक्स. और नॉन बैंक में आता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कंपनीज. ओके. और हियर आई हैव मेंशन्ड अबाउट द RRBs, दैट इज द रीजनल रूरल बैंक्स. प्लीज़ गो थ्रू देम. जैसे कि RRBs में PSL 75% होता है. ओके. एंड ऑल्सो वी नीड टू रीड अबाउट द RRB एक्ट, क्योंकि RRBs में शेयर होल्डिंग जो है, तो पहले शेयर होल्डिंग था यूनियन RRB, कोई भी RRB का 50% यूनियन के पास होता था, स्टेट के पास 15% और स्पॉन्सर बैंक, कोई भी एक स्पॉन्सर बैंक होता है उसके पास 35%. अब उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है 2015 में, जिससे कि यूनियन, स्टेट प्लस स्पॉन्सर बैंक के पास 51% होगा इन तीनों को मिला के, और कोई भी एक प्राइवेट इन्वेस्टर के बारे में इन्वेस्टर के पास 49% शेयर्स होंगे. ओके. एंड इट्स अल्टीमेट रेगुलेटर इज RBI, बट इमीडिएट रेगुलेटर इज NABARD. ओके. नाउ इन दिस क्वेश्चन दे आस्क्ड अबाउट बीटा. व्हाट इज बीटा? बीटा तो ये ऑप्शन है, but we also have to study about these 3 options. The process of simultaneous buying and selling of an asset from the different platforms, it is known as arbitrage. An investment strategy of a portfolio manager to balance risk versus reward, it is known as asset allocation. A type of systemic risk that arises when perfect hedging is not possible, it is known as basis risk. Okay. So and what is known as hedging, क्योंकि hedging शायद ऑप्शन में भी है, perfect hedging. Okay, so hedging is a strategy that tries to limit risk in financial assets. It uses financial instruments or market strategies to offset the risk of any adverse price movements. इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना पढ़ लो काफ़ी है. Here I have given the chart from analysis notes about market subtypes. Please go through it.
Okay, now we'll read about Ayushman Bharat linked from this question. Okay, from this question we'll study Ayushman Bharat with it. तो आयुष्मान भारत 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर अब दो स्कीम्स थे, एक तो 1.5 लाख प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट किया गया, और दूसरा है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम या फिर पीएम जन आरोग्य योजना। अब ये पीएम जन आरोग्य योजना या फिर PMJAY इट सबस्यूम्ड द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि पहले था, और सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये दोनों भी अब इसके अंडर आ गए। ओके, इन दोनों को मिला के इस स्कीम के अंदर लाया गया। ओके, सो हियर यू विल नो अबाउट पीएम जन आरोग्य योजना, प्लीज गो थ्रू इट। एंड एज दे मेंशन दैट health states are primarily responsible for organizing the health services, we'll study about different lists under 7th schedule. Okay, under the 7th schedule different lists, concurrent list, state list, union list। तो अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि ये सब ऑप्शंस दिए होते हैं अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स। ओके, अबाउट दिस सब्जेक्ट्स, सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस सब्जेक्ट्स। और उनमें तो आप ये वाला सब्जेक्ट तो आपको मिलता ही है, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। ओके, मॉक टेस्ट में। दिस क्वेश्चन इज अबाउट स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो इसलिए मैंने उससे रिलेटेड ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैंने मोनल सर के नोट से चार्ट्स दिए हैं इधर, सो प्लीज़ गो थ्रू देम बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट। ओके, ऑल्सो this is the gold related GK data from Monal Sir's notes, and these are my own charts that I made from the after analyzing the previous year questions. I made this previous year. Okay, पिछले साल मैंने ये बनाया था about different minerals. You can remember this, all of this, because this will help you. This question is about India accounts for 3.2% of total export of goods. तो ये 3.2% नहीं है, 1.8% है। Okay, and they also asked about PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो ये स्कीम के बारे में आप यहाँ पढ़ लेना। ओके, क्योंकि डिस्कशन करने में इनके बारे में कुछ फ़ायदा नहीं है, आप खुद से ही इनको समझ सकते हैं। देयर आर 14 इंडस्ट्रीज जो PLI से लिंक्ड है। दिस इज़ अ फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। दिस इज़ अ फैक्ट दैट आई फाउंड रिसेंटली कि 50% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड 30% ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट्स are through the Red Sea. Okay, in the next question they asked about global compact for safe, orderly and regular migration. So it is an intergovernmentally negotiated agreement prepared under the auspices of United Nations that describes itself as covering all dimensions of internal migration in a holistic and comprehensive manner. ये इंटरनेशनल माइग्रेशन से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि UN के अंडर है। अब 2016 में भी एक न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन हुआ था जो कि रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स से रिलेटेड था। ओके, आफ्टर दिस डिक्लेरेशन 2018 में इस कॉम्पैक्ट को लाया गया। These are the languages that are used and it has not been adopted by all the countries. So these are the facts that you can study. Now उससे रिलेटेड, उससे लिंक्ड एक और टॉपिक है जो हमें पढ़ना होगा, दैट इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, IOM। तो इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ लेना। ओके, सॉरी। ऑल्सो यू नीड टू रीड अबाउट द अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा 2015। ओके, ये मैंने पढ़ा है, इससे रिलेटेड ही कहीं पढ़ा है तो मैंने वो भी इधर डाल दिया। द अदीस एजेंडा इज़ अ ग्लोबल फ्रेमवर्क दैट सीक्स टू अलाइन फाइनेंसिंग फ्लोज एंड पॉलिसीज विद इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रायोरिटीज़। ओके, तो ये आप देख लेना। इन दिस क्वेश्चन दे आस्क्ड अबाउट इजराइल हैज़ एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सम अरब स्टेट्स, अबाउट द अरब पीस इनिशिएटिव एंड द अरब लीग। सो इधर आपको अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में पढ़ना होगा बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग इजराइल से मैपिंग से भी क्वेश्चंस आए, इधर से भी क्वेश्चंस आए, और अभी तो इजराइल गाज़ा का वॉर भी चल रहा है, तो दैट्स वाई द रीजन ऑफ इजराइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर ऑल्सो। ओके, I have also uploaded another video very earlier, okay, जिसमें वर्ल्ड मैपिंग था इजराइल के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी थे रिगार्डिंग द डिस्प्यूट ऑफ इजराइल एंड गाजा, तो यू कैन गो एंड वॉच इट।
This is regarding Abraham Accords. Israel signed the Abraham Accords with the United Arab Emirates and Bahrain in normalizing the diplomatic ties between the two countries. So here you can study about Arab Peace Initiative, or these are the facts regarding the creation of Israel. So what is Balfour Declaration? 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट, तब का ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये डिक्लेयर द सपोर्ट फॉर क्रिएशन ऑफ अ नेशनल होम फॉर ज्यूज इन पैलेस्टाइन. अब ज्यूज तब कहाँ थे या क्या कर रहे थे वो आप, आई विल पुट द लिंक ऑफ द वीडियो हियर, यू कैन वॉच इट. आफ्टर दैट 1948 में अरब इजरायली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ जिसमें इजराइल जीत गया. अब वेस्ट बैंक जो है वो रीजन जॉर्डन के अंदर था और गाजा अंडर इजिप्ट के कंट्रोल में था. अब उसके बाद 1967 में 6 डे वॉर हुआ जबकि इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा, गोलान हाइट्स, सिनाई पेनिनसुला और ईस्ट जेरूसलम को कैप्चर कर लिया. फिर आता है 1979 जब इजराइल इजिप्ट का पीस ट्रीटी हुआ एंड सिनाई पेनिनसुला वाज रिटर्न टू इजिप्ट बट इट हैड टू रिकॉग्नाइज इजराइल. ओके. फिर आता है 1993 इसमें ऑस्लो एकॉर्ड्स हुआ जब इजराइल एंड पैलेस्टाइन रिकॉग्नाइज्ड ईच अदर एंड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन पार्ट्स ऑफ वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप. ओके. नाउ इन दिस क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड अबाउट G20 के बारे में इन्होंने पहले भी बहुत से क्वेश्चंस पूछे थे एंड अभी फिर से इतना डीप, मतलब उतना भी डीप नहीं बट डीप पूछ लिया है. ओके. सो दैट्स वाई वी नीड टू, जो क्योंकि इस साल G20 2023 में इंडिया में ही हुआ तो इसके लिए हमको G20 और अच्छे से पढ़ना होगा. एंड व्हाट आर द हाईलाइट्स. आई फाउंड अ PDF फ्रॉम G20 इंडियाज वेबसाइट. I will upload it in the Telegram channel. You can go through that PDF. Okay. आपको जो भी important points मिलते हैं आप you can take it from there. Okay. So this is regarding G20. What are the countries and this is the mnemonic for remembering the 20 countries plus European Union now. क्योंकि sorry African Union, क्योंकि African Union भी हाल ही में ऐड हुआ है G20 में. So you can remember from it. Okay. This is regarding digital public infrastructure. G20 Osaka Declaration on Cross-Border Data Flow and also the African Union. Okay. So that's all. अभी इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी एंड आयर के बारे में 2023 में इतना ही पूछा गया था. We have discussed about them. I will put the PDF in the Telegram channel. You can download it from there. Okay. In the next video we will discuss the PYQs of another subject. And also I would again like to mention, please don't follow synopsis blindly. ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, मतलब खुद से कभी सीख नहीं पाओगे अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो. ओके. सो दैट्स इट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.